اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ بے شک میرے حبیب کی زندگی تمام کائنات کے لیے نمونہ عمل ہے، تمام انسانیت کے لیے نمونہ عمل ہے۔ حضرات محترم، ہم پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں۔ جس سے پوچھا جائے کہ آپ نبی کے دیوانے ہیں، ہر آدمی بڑا سینہ ٹھوک کر کہتا ہے کہ ہاں ہمیں مصطفیٰ سے محبت ہے۔ اور جو جس سے محبت کرتا ہے وہ اس کا پیروکار بھی ہوتا ہے۔ رب نے فرمایا کہ بے شک، یعنی کہ اے لوگو تمہارے لیے میرے حبیب کی زندگی نمونہ عمل ہے، درس حیات ہے، دستور زندگی ہے۔ اب آپ کو اپنی حیات کے جس پہلو پر رہنمائی چاہیے تو آپ کو کسی اور کی طرف جانے کی ضرورت نہیں، کہیں نظر دوڑانے کی ضرورت نہیں، بلکہ آپ کو اپنی زندگی کے ہر پہلو کی اصلاح کا جو اگر مبدا و ماخذ ملے گا وہ پیارے مصطفیٰ کی سیرت میں ملے گا۔ دوسروں کے دروازے پر وہ جاتے ہیں جن کے پاس اپنا کچھ نہیں ہوتا، بھیک وہ مانگتا ہے جس کے پاس اپنا اثاثہ نہیں ہوتا، دوسروں کی طرف جھانکتا وہ ہے جس کے پاس اپنا کچھ نہیں ہوتا۔ مگر الحمدللہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو وہ رسول عطا فرمایا کہ جس نبی کونین کے فضائل و کمال میں خود میرے رب نے فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ اے لوگوں میرے حبیب کی زندگی تمہارے لیے دستور عمل ہے۔ اللہ نے آپ کو وہ نبی عطا کیا جس نبی کی سیرت کا جب ہم مطالعہ کریں، جس نبی کونین کی سیرت پر اگر ہم نظر ڈالیں، ہماری زندگی جس موڑ پر ہو، ہماری زندگی کے ہم جس موڑ پر ہو، ہر موڑ پر اگر ہمیں رہنمائی چاہیے تو ہمیں کسی مغربی تہذیب کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں کسی اور دوسری تہذیب و تمدن کی ضرورت نہیں، ہمیں صرف اور صرف مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سیرت کا مطالعہ کرنا ہوگا، آقا کریم کی سیرت کریمہ کو دیکھنا ہوگا کہ مصطفیٰ جان رحمت نے جینے کا سلیقہ کیسا سکھایا۔ وہ نبی جس نبی کونین نے حتیٰ کہ آپ کو اٹھنے، بیٹھنے، سونے، جاگنے، ایک ایک لقمہ کھانے تک کا طریقہ بتایا، اس نبی کی سیرت کا عالم کیا ہوگا؟ وہ نبی بتا رہے ہیں کہ جب آپ زمین پر چلیں تو آپ کے چلنے کا انداز کیسا ہو، وہ نبی بتا رہے ہیں کہ جب آپ کسی سے گفتگو کریں تو آپ کی گفتگو کا انداز کیسا ہو، وہ نبی بتا رہے ہیں کہ جب آپ کہیں بیٹھ کر کھانا کھائیں مجلس کے آداب کیسے ہوتے ہیں، یہ پیارے نبی بتا رہے ہیں۔ برادران اسلام، اس لیے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سیرت کا مطالعہ کرو، آپ کو جینے کا سلیقہ آ جائے گا۔ مگر آج ہمارا حال کیا ہے؟ آج ہمارے نوجوان کو دیکھو، آج ہم پورے کے پورے مغربی تہذیب کے دلدادہ ہو گئے۔ عزیزان گرامی، کسی انسان کے سینے میں عشق مصطفیٰ کی چمک نظر نہیں آتی۔ آج ہمارا لباس دیکھیں، ابھی مولانا مشیر صاحب بتا رہے تھے کہ ہم ظاہر و باطن کے اعتبار سے اگرچہ ہمارا باطن چاہے جیسا ہو مگر ظاہر ہمارا یہود و نصارہ کی طرح ہو چکا۔ عزیزان گرامی یاد رکھو، ہم جس کے جیسی مشابہت رکھیں گے، رب کے پیارے حبیب نے فرمایا من تشبہ بقوم فہو منہم، کہ جو جس سے مشابہت رکھے گا قیامت کے دن اس کا انجام اسی کے ساتھ میں ہوگا، اس کا حساب و کتاب اسی کے ساتھ میں ہوگا۔ اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارا حساب و کتاب غریب نواز کے ساتھ ہو، اگر ہم یہ چاہتے ہیں ہمارا حشر و نشر سرکار غوث اعظم کے ساتھ ہو، تو ہمیں کسی امریکن یا کسی برٹش والے کے پیچھے نہیں چلنا، بلکہ ہمیں سیرت کا مطالعہ مصطفیٰ کی کرنا ہوگا، اور اسی سیرت کا مظہر بن کر کے آئے ہیں۔ سرکار غوث الاعظم کی زندگی کو دیکھیں، اسی سیرت کا مظہر ہے۔ سرکار حسنین کریمین کی زندگی کو دیکھیں، اسی سیرت کا مظہر ہے۔ سرکار غریب نواز کی سیرت کو دیکھیں کہ آپ اگر ان کی حیات مقدسہ کا مطالعہ کریں، قسم اللہ کی آدمیات بھی غوث اعظم کا غلام ہو جائے گا، انشاءاللہ دنیا بھی کامیاب ہو جائے گی، عقبہ بھی کامیاب ہو جائے گا۔ سرکار غریب نواز جب بھارت کی سرزمین پر آئے ہیں، ابھی ہندوستان کی ولایت مل رہی ہے، مدینے میں ہے سرکار،
खुरासान बुखारा जने कहाँ के सफर किए, मगर अजीजान गिरामी प्यारे मुस्तफ़ा ने सरकार गरीब नवाज को हिंद की विलायत अता फरमाई। बिरादरान इस्लाम, जब भारत की सरजमीन पर सरकार गरीब नवाज आ रहे हैं, सरकार गरीब नवाज का कोई लश्कर नहीं है, सरकार गरीब नवाज के पास कोई फौज या जंग के आलात तो हमारा कोई सामान नहीं है, बल्कि हाथ में कुरान है, गले में तस्बीह है, लबों पर जिक्र खुदा है, हाथ में एक असा है, एक मुसल्ला है, और लेकर भारत की सरजमीन पर आए हैं। बिरादरान इस्लाम, ये सरकार गरीब नवाज आए और आने के बाद जब आपने दीन की तबलीग शुरू की है तो कैसे कैसे मसाइल व आलाम से प्यारे गरीब नवाज को दो चार होना पड़ा हजरात मोहतरम। लेकिन याद रखो, सरकार गरीब नवाज ने जो अंदाज इख्तियार किया है, गरीब नवाज ने जो भारत के मुसलमानों को जो ईमान की दौलत अता की है, बिरादरान इस्लाम को किस अंदाज से कि जब आए हैं तो पूरा का पूरा कुफरिस्तान है, मगर वो सीरत मुस्तफ़ा की सीरत का मजहर है। सरकार गरीब नवाज जिस जगह जाकर बैठते हैं, कभी किसी बुतकदे के सामने है, आपका मुसल्ला बिछा है, अजीजाने गिरामी पुजारी आते हैं और आकर के आप पर कोई सख्ती करना चाहते हैं, मगर मेरा गरीब नवाज बड़े मुस्कुराने के बाद जवाब देता है कि मैं भी उसी अल्लाह का बंदा हूँ जिसके आप बंदे हैं, ये जमीन उसी रब की है जिसने आपको पैदा किया है, जिसने मुझे पैदा किया है। बिरादरान इस्लाम, अगर कोई आप पर सख्ती करता, आप फरमाते बात क्या है, आपने कब से इसकी पूजा की है? लोगों ने बताया हमें तो सदियां हो गई इसे पूछते पूछते हजरात मोहतरम, मगर आपने फरमाया कि आप जानते हैं कि अगर ये तो पूजा ना करें, मैं उसको पूछता हूँ जिसने आपको भी पैदा किया और इसको भी पैदा किया है। बिरादरान इस्लाम, सरकार गरीब नवाज रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की सीरत का मुताला तो करें, भूखे हैं प्यासे हैं, मगर कभी झूठ नहीं बोला है। हजरात मोहतरम, आज हमारी सीरत, आज हमारा कैरेक्टर, आज हमारा जीने का तरीका ये हो चुका है कि हमारे लबों पर बार बार झूठ होता है। अज़ीज़ाने गिरामी, हम अल्लाह उसके रसूल के फरामीज से बिल्कुल नाआशना होकर के रह गए हैं। हजरात मोहतरम, आज झूठ हमारे अंदर है, चुगलखोरी हमारे अंदर है, गरीबों को सताना हमारे अंदर है। मैंने कहा मुस्तफा का वो करम करीमाना देखो, दूसरों के हुकूक की तो अभी बात छोड़ो। हम मजलिस में बैठे ना, मजलिस में और इरफान साहब बैठे हैं, कारी अरशद साहब बैठे हैं, हम अगर गुफ्तगू कर रहे हैं, अभी मैं आपसे मुखातिब हूं, लेकिन अगर मुझसे बराबर से कोई कुछ कहेगा तो मैं उसकी तरफ कैसे देखूंगा कि हाँ कहो क्या कहना चाहते हो? यही तो अंदाज होता है हमारा, आपका, सबका यही तरीका होता है। मगर मेरे मुस्तफा का करम सबसे अफजल वाला, नबी के बैठने का तरीका सबसे अफजल वाला। सरकार की मजलिस लगी है, सहाबा चार जानिब से सरकार को ऐसे घेरते जैसे कि चौधरी के चांद को हाला घेर लेता है। बिरादरान इस्लाम, अब सरकार किसी सहाबी की गुफ्तगू सुनते तो उसकी तरफ सरकार का रुख मुबारक होता और आंखों में आंखें डालकर नबी कौनैन उसकी गुफ्तगू समाअत फरमाते। उसके बाद जब दूसरी तरफ से कोई सहाबी कहता या रसूल अल्लाह उन्जुर इलैया, सरकार मेरी तरफ देखे, अज़ीज़ाने गिरामी, तो सरकार ये नहीं कहते हाँ कहो क्या कहना है, हालांकि कहते तो कोई बड़ी बात तो नहीं थी, कोई ऐसी बात थोड़ी कि हाँ तो क्या कहना है, कह सकता है आदमी, लेकिन ना, नबी ने कभी ऐसा ना किया। सरकार उठते, उठकर घूमते, फिर उसके सामने बैठते, फिर कहते कुल मा, कहो क्या कहना चाहते हो। हजरात मोहतरम, अब अगर हम इसकी तशरीह करें और इसको देखें कि आखिर आक़े करीम का घूम कर बैठना और उसके बाद सहाबी से कहना कहो क्या कहना चाहते हो, आखिर सरकार ऐसे भी तो सुन सकते थे। मगर नबी कौनैन की सीरत बताती है कि जब आप किसी की कनखियों से बात सुनेंगे, आप किसी से इस तरह से सुनेंगे, तो उसके दिमाग में ये बात आ सकती है कि पता नहीं सुनने वाले ने मेरी बात को तवज्जो से सुना है कि नहीं सुना है। मगर आका का करम ऐसा था कि सरकार जब सामने बैठ जाते, आंखों में आंखें डालकर कहते अब कहो क्या कहना है, तो कहने वाले को भी यकीन होता कि सुनने वाले ने मेरी बात को इतने गौर से सुना है कि जो मैं कहना चाहता था उन्होंने सुन भी लिया और पूरा भी कर दिया। मोहतरम, ये सरकार की सीरत करीमा है। मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने कब नबी बनाया, कब नबी बनाया? हम वो अकीदा नहीं रखते जो लोग कहते हैं कि 40 साल के बाद नबूवत मिली। मैंने कहा हम उस हदीस पर अमल करते हैं जो मुस्तफा ने खुद फरमाई है। अभी फरमाते हैं कुन्तु नबिय्यन व आदमु बैनल माइ व तीन, कि मैं उस वक्त भी नबी था जब अल्लाह के
नबी हजरत आदम अलैहिस्सलाम मिट्टी और पानी की मंजिलों को तय कर रहे थे। और अरमान मोहम्मदिया की रिवायत फरमाते हैं सरकार के आदम का खमीर बनने से 14,000 साल पहले अल्लाह ने मुझे नबूवत अता फरमाई। 14,000 साल पहले नबूवत मिली है। अज़ीज़ाने गिरामी, उस नबी की सीरत का मदहर बनकर सरकार गरीब नवाज आए हैं। अब उस नबी को रातों रात इतने क़याम और सुजूद करने की जरूरत क्या थी? सरकार लंबा क़याम कर ले तो अल्लाह को ये भी गवारा नहीं, मुस्तफ़ा के पैरों पर बरम आ जाए तो रब कुरान की आयत नाजिल फरमा दे, ए अल्लाह के प्यारे हबीब, मांज़लना अलैका लितशक़ा, हमने ये कुरान आप पर इसलिए थोड़ी नाजिल किया कि आप मुशक्कत में पड़ जाए। वो मुस्तफ़ा अगर रातों रात इबादत करे, अल्लाह को ये भी मंजूर नहीं कि मेरे हबीब के पैरों पर बरम आ जाए। अज़ीज़ाने गिरामी, सरकार इस कदर इबादत करके हमें सलीका यही तो बता रहे हैं। अब आओ गरीब नवाज की बारगाह में। सरकार गरीब नवाज रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जब भारत की सरजमीन पर आए हैं तो आपने सरकार की उसी सीरत को जिंदा किया है। अगर भूखा आया है, आपने मजहब और मिल्लत के बारे में नहीं पूछा। अगर खुद अपना खाना रखा है, खुद नहीं खाया मगर फकीर को अता फरमा दिया है। अज़ीज़ाने गिरामी, अगर कोई किसी दूसरे धर्म का आया गरीब नवाज के पास में और जिस चीज का मुतालबा किया, मेरे गरीब नवाज ने वो अता फरमाया है। रानी इस्लाम सरकार गरीब नवाज रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, तो आप जानते हैं हम पुकारते जरूर हैं, हम मानने का दावा जरूर करते हैं, मगर आज हमारा इश्क गरीब नवाज से सादिक नहीं है, हमारा इश्क सच्चा नहीं है। क्यों? इसलिए कि जब इश्क सच्चा होता है तो महबूब की हर अदा से प्यार हो जाता है, हर अदा से प्यार होता है। आज हमारा हाल क्या है? वो तो सरकार गरीब नवाज है, चाहे जिस मजहब का है, जिस मिल्लत का है, कोई परवाह नहीं, जो मांगा अता कर दिया। आज हमारा हाल ये कि पड़ोसी हमारा है, मेरे पास पैसा ज्यादा, मेरा 3 मंजिला मकान है, मेरे पड़ोसी का 1 मंजिला मकान है, तो मालदार सोचता ये कि घर का सारा कूड़ा करकट लाकर उस गरीब के दरवाजे पर डाल। मैंने कहा ये सीरत मुस्तफा बताते हो, ये नबी ये कौनेन का तरीका बता रहे हो। सरकार ने फरमाया कोई इबादत उस वक्त तक कबूल नहीं हो सकती जब तक कि उसका पड़ोसी उससे खुश ना हो जाए। आज हम पड़ोसियों को दुख देते हैं, आज हम पड़ोसियों पर जुल्म करते हैं, और हज़रात मोहतरम कुछ तो इस कदर नाहंजार होते हैं कि वो सोचते ये हैं कि मेरे घर का जो गटर है उसका पाइप भी पड़ोसी के मकान के सामने निकल जाए। हम ये मुस्तफा की सीरत पर अमल कर रहे हैं। हज़रात मोहतरम याद रखो, आक़ा करीम की सीरत का पहलू ये है, नबी फरमाते हैं ईमान का सबसे कम तर दर्जा ये है कि रास्ते से किसी तकलीफ दे चीज को हटा देना। सरकार करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब रास्ते से चलते, आपके सहाबा चलते, अगर रास्ते में पत्थर होता उसे साइड से डाला जाता, रास्ते में कांटे होते उसे साइड किया जाता। अज़ीज़ाने मोहतरम बल्कि रिवायत में यह आता है अगर कभी किसी रास्ते पर किसी गैर मुस्लिम को कोई तकलीफ दे चीज मिल जाती तो उन लोगों को इतना यकीन मुस्तफा की सीरत पर हो चुका था, वो कहते थे कि शायद रास्ते से भी कोई मुसलमान नहीं गुजरा है, ये पत्थर नजर आ रहे हैं। अज़ीज़ाने मोहतरम ये सीरत मुस्तफा के पहलू है। मगर आज हमारा हाल क्या है? आज हम अपने आप को मुसलमान बताएं, भाई का हक दाब कर बैठ गए, माँ बाप के हुकूक मारे जा रहे हैं। हज़रात मोहतरम सरकार गरीब नवाज से हम चाहते हैं हमें फैज मिले, हम चाहते हैं ना, गए दुआ मांगी लेकिन जैसे गए थे टुल्लू बनकर वैसे ही चले आए वापस। जबकि गरीब नवाज फरमाते हैं कि मेरे दरबार में आए सच्चे यकीन के साथ मैं अता करता हूं, मैं अता करता हूं, देते हैं मेरे गरीब नवाज। मगर बहुत सारे लोग जाते हैं और जाकर के गए, जाकर के दुआ की और वापस चले आए। अज़ीज़ाने मोहतरम जानते हैं क्यों? इसलिए कि जब आपने अपने माँ बाप को ही राजी नहीं किया, जब खुदा राजी ना हो सका, जब मुस्तफा राजी ना हो सके, तो गरीब नवाज से फैज कैसे मिल सकता है, से फैज कैसे मिल सकता है? अज़ीज़ाने मोहतरम याद रखो, अगर आप मुस्तफा को राजी करना चाहते हो, खुदा को राजी करना चाहते हो, तो याद रखो सबसे पहले जो हुकूकुल इबाद हम पर है, वो चाहे पड़ोसी का हक हो, वो भाई का हक हो, माँ बाप का हक हो, रिश्तेदार का हक हो, उसे अदा कर दो। इंशाअल्लाह आपसे अल्लाह भी राजी हो जाएगा, मुस्तफा भी राजी हो जाएगा। आज दुनिया में सबसे ज्यादा जो मजलूम शख्सियात हैं वो बूढ़े माँ बाप होते हैं। बेशक औलाद जवान हो गई, बूढ़े माँ बाप हो गए, बच्चे माँ बाप को बांटने लगते हैं। यार
ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम, कि माँ तेरे पास रहेगी तो बाप मेरे पास रहेगा। मैंने कहा अगरचे वो बूढ़े हो गए मगर दोनों एक दूसरे की जिंदगी का साथ बने चले आ रहे हैं, तू माँ को बांट कर वहां रख दे, बाप को यहां रख दे, तेरे पास इतना ना हो सका कि दोनों माँ बाप को साथ खिला सके? बेशक। मैंने कहा ये वो माँ बाप है जिसने अपने पेट पर ना खाकर तेरे लिए रखा है। हज़रात मोहतरम, वालिदैन का एहतराम, उनकी अजमत, उनका मकाम समझना सबसे पहले है। और जब वालिदैन राजी नहीं होते तो अल्लाह भी राजी नहीं होता। बेशक। जब अल्लाह राजी नहीं है तो मुस्तफा भी राजी नहीं। जब मुस्तफा राजी नहीं तो गरीब नवाज राजी हो जाएंगे? हरगिज़ नहीं। हर मजार से फैज मिलता है, शर्त यह है कि मजार सच्चा होना चाहिए। बेशक। अब ऐसा ना हो कि किसी कब्र का पता ही नहीं है, गुंबद कुब्बा बनाकर खड़ा कर दिया, मियाँ भी जिंदा घूम रहे हैं, मजार बना खड़ा है। बेशक। मियाँ जिंदा घूम रहे हैं, मजार खड़ा हुआ है, लोग जाकर फाता पढ़ रहे हैं। मैंने कहा पढ़ किस पे रहे हो भाई? ऊपर से फूल चढ़ रहे हैं, अंदर ठुकाई हो रही है, पता ही नहीं है। मैंने कहा याद करो, अगर मजार हकीकी है किसी अल्लाह के वली का तो फिर वो मजहरे नूरे खुदा है, वो मजहरे रहमते खुदा बंदी है। इसलिए कि जहां अल्लाह का वली होता है वहां अल्लाह की खास रहमतों का नुज़ूल होता है, दुआ मांगी जाती है, वो जरूर अल्लाह तबारक व तआला कबूल फरमा लेता है। मगर शर्त यह है कि घर में पहले माँ से दुआ करा दे। माँ घर में बूढ़ी बैठी है, कभी इनके पास, कभी इनके पास, कभी उनके पास, इन मौलाना साहब के पास, उन कारी साहब के पास, इस मियाँ के पास, उस बुआ के पास, और मियाँ के पास जा जाके मार चक्कर, मियाँ कारोबार बंद है, मियाँ बच्चे बीमार हैं, मगर उसे घर में बैठी बूढ़ी माँ नजर नहीं आती है, जो कि अल्लाह तबारक व तआला की सरापा रहमत बनकर के बैठी हुई है, जिसके बारे में मुस्तफा कहते हैं कि माँ बाप की दुआ औलाद के हक में ऐसी कबूल होती है जैसे नबी की दुआ उम्मती के हक में कबूल। रात मोहतरम उस माँ को याद नहीं करते? मैंने कहा याद करो, गरीब नवाज से मोहब्बत है, ये बता इसलिए रहा हूं कि आज हमारा जो मामला हो चुका, आज जो हमारा इस्लाह का पहलू है वो सबसे ज्यादा अहम ये है। हम करामतें बहुत सुनते हैं और सुनेंगे इंशाअल्लाह, मगर हज़रात मोहतरम हम जिस वज़ी वली कामिल से वाबस्ता है और उससे फैज अगर लेना चाहते हैं तो फिर याद रखो, फिर हमें हुकूकुल इबाद को अदा करना होगा, हुकूकुल्लाह को अदा करना होगा। हुकूकुल्लाह क्या है? वक्त का नमाज का वक्त आ गया, हमें अल्लाह की बारगाह में झुकना होगा। अज़ीज़ान मोहतरम याद रखो, आज भी हम जिस तरह से जलील और खार हो रहे हैं ये बैद नहीं है कि आज भी हमें इज्जत दोबारा अल्लाह अता फरमा दे। क्यों? इसलिए कि अल्लाह तबारक व तआला मुइज़ है, इज्जत अता फरमाने वाला है। वो जिसे चाहता है इज्जत अता कर देता है और जिसे चाहता है जिल्लत अता फरमाता है। मगर याद रखो, ईमान कामिल कर लो, ईमान मुस्तहकम कर लो। हजरत इब्राहिम का ईमान, डॉक्टर इकबाल ने, अल्लामा इकबाल ने क्या कहा था? आज भी हो जो बराहीम सा ईमान पैदा, आज भी हो जो बराहीम सा ईमान पैदा, आप कर सकती है अंदाज़े गुलिस्ता पैदा। तो हज़रात मोहतरम, आज जो हर जगह हमें जलील किया जा रहा है, आज हर जगह जो हमें जुल्म का सामना करना पड़ रहा है, ये कोई और वजह नहीं, ये हमने अपने असलाफ के तरीके को छोड़ दिया है, हमने अपने असलाफ के कैरेक्टर को छोड़ दिया है। मैंने कहा हम अगर गरीब नवाज के कैरेक्टर पर अमल करें तो गरीब नवाज तो नहीं बन सकते, मगर गुलाम गरीब नवाज और गुलाम बन जाए तो फिर हमारा आका इतना रहीमो करीम है कि अपने इन गुनाहगार गुलामों को छोड़ेगा नहीं। मैंने कहा वो गरीब नवाज है जिसके बिठाए ऊंट, जिसके बिठाए ऊंट पूरा दिन उठाते रहे मगर उठा ना सके। गरीब नवाज ने फरमाया ये ऐसे ना उठेंगे, इन्हें हमने बिठाया, हमने बिठाया है। मैंने कहा जिसको गरीब नवाज बिठा दे, उन ऊंटों को कोई नहीं उठा सकता, तो आपको भी तो गरीब नवाज ने हिंदुस्तान में बसाया है, आपको कैसे कोई मिटा सकता है? बस कर लो इसी अंदाज से कि जो तरीका गरीब नवाज का था वो आज कर लो, इंशाअल्लाह जैसा पैदान कल गरीब नवाज का मिलता था आज भी मिलता रहेगा। बांट रहे गरीब नवाज, लेने का सलीका चाहिए, सलीका चाहिए। हज़रात मोहतरम, औलिया किराम का मकाम कितना अफजल आला होता है। हज़रत नसीरुद्दीन चिराग देहलवी ये सरकार गरीब नवाज के
तिलामिज़ा में भी आते हैं। हजरत नसीरुद्दीन चिराग दहलवी, जानते हैं चिराग नाम क्यों पड़ा है? मैं वलियों की करामत, उनके मकाम बता रहा हूं कि जब अल्लाह की बारगाह में ऐसे झुक जाते हैं तो अल्लाह ताला मकाम कैसा अता फरमाता है, और औलिया से वाबस्तगी का आलम क्या होता है। हजरत नसीरुद्दीन चिराग दहलवी है, हजरत निजामुद्दीन औलिया महबूब इलाही हैं, और महबूब इलाही के मुरीद खास हैं, जिनका नाम मशहूर जमाना क्या नाम है? हजरत अमीर खुसरू। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अमीर खुसरू, हजरत अमीर खुसरू रज़ी अल्लाह ताला ने अपने खानका में बैठे वलियों से निस्बत की बात बता रहा हूं कि जो वलियों से निस्बत होती है तो हमारे असलाफ ने अदब कैसा किया, अदब। हजरत अमीर खुसरू बैठे हुए हैं खानका में, अचानक खानका के दरवाजे पर एक कुत्ता आकर रुका, और अमीर खुसरू कोई छोटी मोटी शख्सियत का नाम नहीं है। आपके बहुत सारे तिलामिज़ा बैठे थे, देखा जब उस्ताद खड़े हो गए तो सब खड़े हो गए। अमीर खुसरू के खड़े होने का अंदाज ऐसा था, खड़े रहे, कुत्ता खड़ा रहा, वो आपको देखता रहा, आप कुत्ते को देखते रहे। कुत्ता चला गया, आप बैठ गए। तिलामिज़ा ने पूछा, हुजूर कोई आया भी नहीं, आप किसकी ताजीम के लिए खड़े हो गए, ये अदब किसके लिए था? निस्बतें कितना एहतराम रखती हैं, कितना मकाम रखती हैं, ये देखिए। हज़रत अमीर खुसरू कहते हैं कोई नहीं आया, लेकिन वो जो सामने खानका के दरवाजे पर कुत्ता खड़ा था ना, मैं उसका अदब कर रहा था। कहने का उसका अदब, हुजूर कुत्ते का? कहने लगे वो कुत्ता आम नहीं था। बोले फिर? बोले जब मैं हजरत महबूब इलाही की बारगाह में रहता था तो आपकी खानका के बाहर एक इसी रंग का कुत्ता रहा करता था, इस कुत्ते के रंग को उस कुत्ते के रंग से निस्बत है, मेरे पीर के दरबार के कुत्ते से निस्बत है, इसलिए मैं उसका अदब कर रहा हूं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये हमारे असलाफ ने हमें अदब करना सिखाया है। बेशक हम ये अदब ना करें। और बहुत से लोगों का हाल देखो कि अल्लाह के वलियों को मानते जरूर हैं, बेशक, मगर मिट्टी का ढेर बता देते। मैं बताता हूँ इसी फिरोजाबाद की एक चुड़ैल का किस्सा। हाजीपुरे की रहने वाली है, वो बहरहाल हलाली तो नहीं होगी, क्यों? इसलिए कि जो अल्लाह के वलियों का गुस्ताख होता है, नस्ब में खराबी होती है तभी गुस्ताख होता है। समझ गए? कई साल पहले की बात है, मेरी मस्जिद के जो सदर साहब मुतवल्ली है पप्पू भाई, इत्तेफाक से उनकी वालिदा बहुत बूढ़ी थी, कोई मसला उन्हें पूछना होता था तो वो बुला करके पूछती थी। इत्तेफाक से उस दिन उन्हें कुछ पूछना था, उन्होंने बुलाया, मैं गया तो सामने एक और बैठी थी औरत, तो बात चल पड़ी, और यही रजब का महीना था। सुभान अल्लाह। बात चली गरीब नवाज की, तो वो कहने लगी तो अजमेर तो सब जाते हैं, हम भी जाते हैं, तो हाँ यही बात थी कि हम मज़ारों पर जाकर दुआ कैसे मांगे। मसला ये था कि ये कह रही है कि हम वहां पर ये नहीं कह सकते गरीब नवाज हमें ये दे दो या दे दो। मैंने कहा नहीं कह सकते, आप उनका वसीला भी ले सकते हैं और कह भी सकते हैं। दलील? मैंने कहा दलील बुखारी की वो हदीस कुदसी है जिसके बारे में फरमाता है कुन्तो बसरहुल्लज़ी फयुबसिरु बिही व कुन्तो समअहुल्लज़ी फयस्मउ बिही व यदहुल्लती यब्तिशु बिहा व रिजलहुल्लती यमशी बिहा। फरमाते हैं कि जब अल्लाह तबारक व तआला हदीस कुदसी में इरशाद फरमाता है कि बंदा नवाफिल के जरिए मुझसे इतना करीब हो जाता है कि मैं उससे मोहब्बत करने लगता हूं। सुभान अल्लाह। व इज़ा हबब्तु, और जब मैं उससे मोहब्बत करने लगता हूं तब फरमाता ना फकुन्तो बसरहुल्लज़ी फयुबसिरु बिही, फिर मैं उसकी आंखें बन जाता हूं जिससे वो देखता है। सुभान अल्लाह। मैं उसके कान बन जाता हूं जिससे वो सुनता है। सुभान अल्लाह। व यदहुल्लती यब्तिशु बिहा, फिर मैं उस बंदे के, उस अल्लाह के वली के हाथ बनता हूं जिससे वो पकड़ता है, मैं उसके पैर बनता हूं जिससे वो चलता है, और जब वो मुझसे मांग लेता है तो फिर मैं उसे अता फरमा देता हूं जो भी मांग लेता है। सुभान अल्लाह। इसलिए मांग सकते हैं। ये बात खत्म हो गई तो उससे कहा अजमेर तो आप भी जाती, तो उसने कहा कि हम कोई वहां पर मज़ार पे जाते हैं, हम तो वहां पिकनिक मंगाने और घूमने जाते हैं, सैर और तफरीह के लिए। मैंने कहा अल्लाह ताला तुम पर अपना गज़ब नाज़िल फरमाए और गरीब नवाज तुम्हें इसका जवाब अता फरमाए। बेशक। दिल से दुआ निकली, हफ्ता, डेढ़ हफ्ता, 2 हफ्ते हो गए होंगे, 20 दिन हो गए होंगे बस। उसके बाद जीने से पैर फिसला तो चारों जगह से फट गया। समझ गए ना जी?
نہ یہ پیر کام کرے، نہ یہ پیر کام کرے، نہ ہاتھ کام کرے، نہ دوسرا ہاتھ کام کرے، اس انداز سے گری کہ یہ ہاتھ یہاں رہ گیا، یہ یہاں رہ گیا، بالکل مٹی کا ڈھیر بن گئی۔ میں نے کہا جو غریب نواز کو کہتے ہیں، غریب نواز ایسے ہی بناتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، بے شک۔ جو غریب نواز کی بارگاہ میں گستاخیاں کرتے ہیں، غریب نواز ایسے ہی جواب عطا فرماتے ہیں۔ اس کے بعد آج تک کا یہ حال ہے کہ آج چلنے تو لگی مگر چلتی اب بھی لاٹھی کے سہارے، یعنی کہ اس سے بوکر سے چلتی ہے۔ میں نے کہا یاد رکھو اللہ کے ولیوں کی شان میں بھونکنا نہیں چاہیے، اس لیے کہ جو ان کی شان میں گستاخیاں کرتا ہے وہ اگر چاہے تو آسمان ہلا دے، وہ چاہے تو حضرات محترم آسمان ہلا دے۔ برادران اسلام، اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم نسبتوں کا احترام کرتے ہیں۔ سرکار غریب نواز کو نسبت ہے حضرت غوث پاک سے، غوث پاک کو نسبت ہے حسین پاک سے، حسین پاک کو نسبت، یہ سب سرکار کے لاڈلے ہیں۔ تو ان کی دشمنی انسان کے ایمان کو ختم کر دیتی ہے، مگر حضرات محترم محبت ہمیں ہے تو ہمیں طریقہ ان کا اپنانا پڑے گا نا، طریقہ اپنانا پڑے گا۔ دیکھیں ہمارے اسلام کو کس انداز سے دبانے کی کوشش کی گئی ہے۔ برادران اسلام، حضرت نصیر الدین چراغ دہلوی حضرت محبوب الہی کی بارگاہ، محبوب الہی کی بارگاہ میں آتے ہیں، آ کر بیٹھتے ہیں۔ حضرت محبوب الہی کی خانقاہ میں مسجد تعمیر ہو رہی ہے، مسجد تعمیر ہو رہی ہے۔ کسی نے دیکھا کہ مسجد تعمیر ہو رہی ہے اور وہاں پر تعمیر ہونے میں بہت سارا تیل خرچ ہوتا ہے، چراغ جلتے ہیں، چراغ جل جاتے ہیں۔ دیکھا